with the desire to become the greatest archer and dreamed of learning from the greatest teacher of that time, Guru Dronacharya. Oh Lord, I wish to learn archery. If Guru Dronacharya accept me as his disciple, I will devote my life to his teachings. Respected Guru Dronacharya, please accept me as your student. I am eager to learn the art of archery under your guidance. Child, you are brave, but you belong to a humble tribal family. I am the royal teacher, and I am bound to teach only the prince of Hastinapur. I cannot accept you. Though his heart was heavy, Eklavya did not argue. He bowed deeply. Guruji, I understand, but a true teacher does not live only in the classroom. A true teacher lives in the heart of the student. Eklavya built a clay idol of Dronacharya. He practiced day and night in front of it, imagining his Guru guiding every arrow. His devotion was so that his skill soon surpassed even the prince. Disciples, aim not at the fish, but only its eye. Tell me what you see. Guruji, I see the tree, the leaves, and the fish together. I cannot separate them. I see the fish, but its eye is too small. My strength cannot help me here. I see the body, the tail, everything, but not the eye alone. My vision is divided. Master, I cannot hold to just the eye. And you, Arjuna, what do you see? Guruji, I see only the eye. Nothing else exists. Who is this boy? His aim is sharper than mine. Guruji, you promised me that I would be the greatest archer of all time. Guru Dronacharya was shocked to see the boy was none other than Eklavya. Eklavya, how did you master such skill without me teaching you? Guruji, you rejected me, but I never rejected you. I made your idol my teacher. Every year I shot with your blessings. Dronacharya was bound by his promise to Arjuna. He feared Eklavya's skill would overshadow his favorite disciple. Eklavya, if I am truly your Guru, then you must offer me Guru Dakshina. Give me the thumb of your right hand. Guruji, this is too much. Guruji, what I have is yours. My thumb, my skill, my life, everything belongs to my teacher. And so Eklavya sacrificed his thumb. He could no longer shoot with the same perfection, yet he remains the greatest symbol of Guru Bhakti, devotion to one's teacher. Eklavya, you have shown the world that respect for a Guru is higher than victory, higher than glory. My Guru lives forever in my heart. Even if I cannot hold the bow, I have already achieved the greatest aim, blessing my teacher. We should respect our teachers and elders. Thank you. Bal Sabha is not just an event. It is a celebration of our ideas, confidence and ability to speak up. While talking about Bal Sabha, we must also talk about the guiding light behind us, our teachers. Teachers plays the most important
but also values. They inspire us to be disciplined, kind, and hardworking. So, as we are enjoying Bal Sabha, let us also take a moment to respect and thank our teachers for their efforts, patience, and love. Thank you. Now, let's move to the most awaited moment of today's Rudraite's Bal Sabha. First of all, I would like to thank you and the school administration for inviting me here and giving me the opportunity to meet you, to interact with you, and the pleasure is all mine. So you want to know about my journey? Okay. So I'll start my journey from my school days. Like the way you are, all of you are sitting here. I used to sit on the same chairs in my school, and from my school days, I was a very average student. I was not a very bright student. I was not, I was like a backbencher who was not very much, studious initially, and I was one of the most mischievous students during my time, and at that time I was not aware, and I was not I had no goal in my life that someday I'll become an IAS officer and I'll join the Indian Administrative Service, and such a at that time I was very carefree and not much serious about my career. And slowly when time passed by, I used to discuss with my father कि पापा मुझे लाइफ में आगे क्या करना है. I was not very sure. I was very good in sports. I used to play all these sports. I was like jack of all trades but master of none. So I used to play everything but I was not a master in anything. And I used to love art, culture and singing, dancing and all. But when it comes to study, I was like कि जैसे कल एग्ज़ाम है तो एक दिन पहले I used to pick up my books and asked my फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के पेयर में जो क्लासमेट्स की भाई कौन सा पेपर है, क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है. तो वो सब चीज़ें शुरू में स्कूल के टाइम पे नहीं थी, विच आई रिग्रेटेड लेटर. एंड आई ऑलवेज वांट कि आप सब लोग जब अभी से अच्छा अपनी लाइफ में गोल बनाएंगे, एम बनाएंगे, तो surely you will be able to achieve that goal much faster than I used to like. मुझे जो ये अचीवमेंट मिली थी, I was 28, but there were students and there were my batchmates जिनको 21 years में they were into the service. तो those 7 years I learned from my mistakes only. अगर मैंने पहले से शुरू से ध्यान अपनी लाइफ में दिया होता तो I would have got this success much faster and much earlier, and I could have been कैबिनेट सेक्रेटरी तक की रैंक में अगर आप 21 ईयर्स में ज्वाइन करते हैं तो आप जा सकते हो, जो मैं नहीं जा सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई द ईयर्स आई हैव वेस्टेड. तो स्कूल के टाइम में जब एवरेज होता था तो कुछ पता नहीं था क्या करना है, तो पापा ने बोला बेटा इंजीनियरिंग करनी है, तो 11 में मैंने नॉन मेडिकल ले लिया, इंजीनियरिंग में चले गए और किसी तरह मैं उसमें पास हुआ, क्योंकि इंजीनियरिंग मुझे समझ में नहीं आ रही कहाँ इतनी इट्स नॉट ईजी टू ग्रास्प इंजीनियरिंग नॉन मेडिकल एट दैट टाइम. बट फिर भी आई वॉज लाइक कि लास्ट डे पढ़ के किसी तरह मैं पास हो जाता था और आई क्लियर माई 11th and 12th. देन जब कॉलेज के लिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भरे, अब आज के टाइम में तो आपके बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको IIT की कोचिंग देते हैं और AIEEE की कोचिंग देते हैं. बट मेरे टाइम पे आई वॉज नॉट मच अवेयर और मैंने सारे एग्ज़ाम्स भरे तो सही, पर मेरा एक भी क्लियर नहीं हुआ. नॉट इवन अ सिंगल एग्ज़ाम आई वॉज एबल टू क्लियर आफ्टर माई 12th because I was not very serious and I was not able to give that much time and effort which was required. तो वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई. बट फिर भी जब मैंने फादर साहब से बोला मैंने अब क्या करना है, तो उन्होंने किसी तरह मुझे एक मैनेजमेंट कोटे में एक कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया. अब इंजीनियरिंग भी वैसे ही पढ़ी मैंने कि अगले दिन एग्ज़ाम है और पिछले दिन उठा के सब पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया. तो आई वॉज वेरी नॉन सीरियस. तो इंजीनियरिंग पे भी आई वॉज नॉट वेरी ब्राइट. एज एन इंजीनियर मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट भी नहीं रहा हूँ,
बट हाँ स्पोर्ट्स वगैरह फिटनेस एंड एवरीथिंग आई वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन टू इट। फिर जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो आई डोंट नो कैसे, मतलब वन थिंग आई वॉज गुड एट वॉज नो, मैं आप सबको भी यही बताना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में ना इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मैटर करती है। आपकी नॉलेज से ज़्यादा ना आपके बात करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आई वॉज नॉट वेरी नॉलेजेबल, बट मेरा जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो 2 कंपनीज में आई गॉट प्लेस्ड, एक इन्फोसिस में और एक डेल में। दोनों मेरी प्लेसमेंट हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई नॉलेज नहीं है बट कॉन्फिडेंस है। तो मुझे दोनों में सिलेक्शन हुआ, बट अल्टीमेटली मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में, मैं आप सबको भी बोलना चाहूँगा कि आपके लाइफ में गोल क्या होना चाहिए। आपके पेरेंट्स ने आपको पूरी लाइफ पढ़ाया लिखाया, आपको नो स्कूलिंग एजुकेशन कॉलेज सब करवाया, तो मैंने एक चीज़ ये सोची हुई थी कि मुझे उनके ऊपर बर्डन नहीं बनना है। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट टू अर्न एंड आई वट एवर आई डू, जो आपने मेरे लिए किया, इट इज़ माई टाइम टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड समडे आई वॉन्ट टू मेक यू प्राउड। तो सिंस कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया तो फिर मुझे दोनों जगह पे अपॉइंटमेंट मेरा हो गया बट कॉल नहीं आया, तो मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। एक कॉल सेंटर जब किया, मैं माई फर्स्ट सैलरी वॉज जस्ट 8,000 रुपीज़। तो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया कि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। एवरी वर्क एवरीबडी दे डिज़र्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड कोई भी हो, चाहे आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पीएन भी हैं, तो आपको कभी उसमें भेदभाव नहीं करना है कि वो कौन छोटा है कौन बड़ा है। सब बराबर है, हर कोई काम कर रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है, तो सब इक्वल है। तो मैंने उस कॉल सेंटर को ज्वाइन कर लिया। जब ज्वाइन किया उसके बाद मुझे ये लगा कि दिस इज़ नॉट वेयर आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड इन माई लाइफ एंड जो मेरा गोल है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, उनको एक अच्छी लाइफ देना, वो इससे पूरा नहीं होगा। तो फिर मैंने एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया PSU का और मेरा क्लियर हो गया। फिर मैंने वो PSU ज्वाइन करी। अब PSU ज्वाइन करी, वहाँ पे भी जाकर मुझे वो पीस नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे पीस नहीं मिला। तो फिर एक दिन हमारे ऑफिस में ना एक IAS ऑफिसर आए, तो मैंने उनको देखा और मुझे लगा कि ये कौन है, और ऐसे ऐसे सारी मेरे CMD एंड एवरीबडी इज़ लाइक चेयरमैन सब उनको रिसीव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तब मुझे पता चला कि IAS एज ए सर्विस क्या होता है। जो मेरे वाइफ है वो मेरे साथ कॉलेज से थे, शी ऑल्सो वॉन्टेड, शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस UPSC एग्ज़ाम, बट उन्होंने जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ शी गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एज अ लेक्चरर, तो उन्होंने वो एक ज्वाइन कर लिया। बट मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं था कि मेरे वाइफ को ये UPSC और IAS वगैरह बहुत एक अट्रैक्ट करता है और एक अच्छा एग्ज़ाम लगता है, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड वो रहता था। फिर जब मैं ऑफिस में गया और मैंने उन IAS ऑफिसर को देखा तो मैंने सोचा कि नहीं, आई विल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। अब जब प्रिपेयर कर रहा था ना, तो उसमें क्या है ना, मेरी लाइफ की सबसे बड़े जो एक सिखाने वाले थे ना, वो मेरे रिलेटिव थे, जो मेरे फादर को हमेशा बोलते थे कि ये लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, कभी कुछ बनेगा नहीं, कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएगा। तो वो मेरे लाइफ में एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता था कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो जब मैं ऑफिस में भी प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे साथ के थे, वो भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी हेल्प करो इसको अचीव करने में। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि यार तेरे बस का नहीं है। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी फील हुई, और देन एंड देयर आई डिसाइडेड कि लाइफ में अब कुछ भी हो जाए मैं इसी एग्ज़ाम को ही क्लियर करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो दैट वॉज द डे आई लेफ्ट एवरीथिंग। मैंने अपने ऑफिस से भी लीव ले लिया, अपनी फैमिली में भी बोल दिया कि अब मैं सिर्फ जो है UPSC की प्रिपरेशन करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। तो उसके बाद से फिर मेरी प्रिपरेशन फेज़ शुरू हो गई। अब प्रिपरेशन के फेज़ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। मेरे फादर साहब का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे मदर के जॉइंट का बहुत प्रॉब्लम था, उसका ऑपरेशन और बहुत इश्यूज़ हुए थे। आई गॉट मैरिड बिफोर माई प्रिपरेशन बिकॉज मेरे वाइफ के जो मेरे फादर इन लॉ हैं और वो सब थे, तो दे वांटेड कि शी ऑल्सो गेट सेटल्ड।
तो मैंने उनको भी कमिटमेंट कर दिया कि नहीं ठीक है, विल गेट मैरिड, मैं प्रिपरेशन उसके बाद करूँगा. तो माई वाइफ वॉज वेरी लाइक काइंड इनफ टू हेल्प मी आउट एंड टू स्टे विद मी ड्यूरिंग माई बैड फेज. माई पेरेंट्स, माई सिस्टर, एवरीबडी दे सपोर्टेड मी. तो जब मैंने ऑफिस से 3 साल के बाद मैंने लीव ले लिया था, 3 years हो गए थे मुझे, उसके बाद मैं लीव पे चला गया. इट टुक मी 2 years टू प्रिपेयर. फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट रेलवे सर्विस, सेकेंड अटेम्प्ट में आई गॉट इनटू IAS. तो ड्यूरिंग दिस जर्नी इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज. एक टाइम ऐसा आया था कि लाइक ऑल माई सेविंग्स आई स्पेंट ऑन माई कोचिंग एंड एग्ज़ाम्स, मतलब जो टेस्ट सीरीज एंड ऑल. तो मेरे वाइफ मुझे पॉकेट मनी देते थे डेली ना, कि आज आप जाओ, ये लो 200 रुपये आप मुझे, मैंने उनसे मांगे कि यार मुझे दे दो, मुझे चाय पीने के लिए पैसे चाहिए और उसके लिए पैसे चाहिए. तो आई हैव सीन दैट टाइम ऑल्सो, क्योंकि मैंने ये था कि पेरेंट्स, मेरे फादर ही वॉज वेरी वेल ऑफ, ही हैड अ वेरी गुड बिजनेस, बट मैंने उनसे मांगा नहीं. उसके बाद मैंने मेरे वाइफ से कमिट किया था कि मैं जो है ना, आप मुझे सपोर्ट दोगे तो मैं इस चीज़ को ज़रूर अच्छे से करूँगा. अब मेरे वाइफ जब थे ना कॉलेज में, तो शी वॉज वेरी फैसिनेटेड. तो मैंने उनको ना कमिटमेंट करी थी कि आप जिस जॉब के लिए ना, जब मुझे मैरिज करनी होगी, तो उनके फादर ने यही कंडीशन रखी थी कि ही शुड बी लाइक सेटल्ड. बट आई वॉज नॉट सेटल्ड, आई वॉज अनएम्प्लॉयड जब मैं प्रिपेयर कर रहा था. तो मैंने उनको ये प्रॉमिस किया था कि वन डे आई विल बिकम IAS, एंड शी सपोर्टेड दैट. जो मेरा ड्रीम में शी सपोर्टेड, एंड मैंने फिर जो भी मेहनत करी उस चीज़ को अटेन करने के लिए, ताकि मैं उनको वो लाइफ दे पाऊँ जो मैंने कमिट करी थी. सो फिर अल्टीमेटली आई गॉट सेलेक्टेड, एंड मेरा जब रिज़ल्ट आया, जो मेरा बेटा है उसका नामकरण वाला दिन था, उसी दिन मेरा रिज़ल्ट आया, एंड आई गॉट इनटू दिस सर्विस. दिस वाज लाइक अ ब्रीफ ऑफ माय जर्नी. So your journey is truly very inspirable for us. Sir, after listening your journey, we want to know that what was your biggest source of motivation while you are preparing for your UPSC examination? ये मैं आज आपको ना एक बहुत बेसिक डिफरेंस बताता हूँ मोटिवेशन में और डिसिप्लिन में. मोटिवेशन, जिस दिन वो IAS ऑफिसर मेरे ऑफिस में आए थे, दैट वाज मोटिवेशन, कि उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार मेरे को बनना है, मुझे करना है और ऐसे ही रहना. बट जो मेरे बैक ऑफ द माइंड मैंने एक गोल बना रखा था ना, कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, और वो तभी पॉसिबल है जब मैं डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहूँ. तो मोटिवेशन आपको ना अप्स एंड डाउन्स में लेके जाते हैं. एक दिन आप बहुत मोटिवेटेड हो, लेट से आज आप मेरे से बात कर रहे हो, आप में से कहीं को लगेगा कि यार हमें भी IAS ऑफिसर बनना है, DC बनना है, कि हमें भी बुलाएंगे अपने स्कूल में और ऐसे ऐसे होगा. दैट इज़ मोटिवेशन. बट इफ़ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू मेक श्योर you work for that every day. Small steps daily matter. Big steps occasionally don't matter. Daily जो आप करोगे ना, वो चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं. आपको इंश्योर करना है, अगर मुझे पढ़ाई शुरू करनी है तो डेली मुझे कुछ टाइम, 4 घंटे 6 घंटे उसमें देने. तो आपकी लाइफ में पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है. तो आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, अपनी लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं. आप में से कुछ लोग साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है. मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि डोंट जस्ट गो आफ्टर कि भाई आज मुझे फील हो रहा है तो आज मैं 12 घंटे मेहनत करूँगा, कल एकदम से लगा कि नहीं यार कल तो मैंने 12 घंटे कर लिया, आज छुट्टी ले लेता हूँ. This will not take you anywhere. Daily your contribution, your consistency, your discipline, it matters. अब जैसे मैं आपको फिटनेस की बात बताता हूँ. आप अगर जिम ज्वाइन करते हो या कोई क्लासेस लेते हो, इफ़ यू वांट टू सी रिजल्ट्स, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आप एक दिन गए, दूसरे दिन नहीं गए. एक दिन आपने हेल्दी खाया, दूसरे दिन आपने
समोसे भटूरे सब खा लिए, तो यू विल नेवर अचीव योर गोल. एम फॉर योर गोल एंड वर्क टुवर्ड्स इट एवरी डे. बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपकी ना एक परसर्वियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. परसर्वियरेंस का क्या मतलब होता है? आज मैं हार गया, तो ये नहीं कि हारने के बाद मैं रुक गया. मुझे डेली उसके लिए काम करना है, हारने के बाद भी चलते जाना है. इन योर लाइफ एक्चुअल में यू नेवर लूज, आइदर यू विन और यू लर्न. तो जब तक आप जीत नहीं रहे हो ना, सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ. आज 1 साल बाद, 2 साल बाद, अल्टीमेटली यू विल विन. उसके लिए आपको पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है कि डेली मुझे करना ही करना है. अगर मेरी लाइफ का कोई बहुत बड़ा गोल है और मैं उसके लिए एफर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे उस गोल को आपको मिलना. तो दिस इज़ व्हाट आई लाइक हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड माई लाइफ. Thank you, sir, for your valuable message for us. Sir, as we are school students, when our exams are coming, like tomorrow our exam, so yesterday we got panicked that tomorrow is our exam, how do we cover our syllabus, and just runs behind marks and grades. But sir, in your opinion, what's the real importance of studies in a student's life? आई हैव लर्न दिस वेरी हार्ड वे. मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की बात सही टाइम पे, जब मैं आपकी एज का था, अगर मैं सुन लेता तो आई वुड हैव अचीव्ड माय गोल मच अर्लियर. पहली चीज़ तो ये है ना कि यू डोंट हैव टू टेक दैट प्रेशर एट ऑल. जब मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, द ओनली थिंग आई रियलाइज्ड वाज, एक्चुअली मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था. जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, प्री का एग्जाम पेपर देखते ही ना आई गॉट पैनिक्ड एंड आई फेल्ड मिजरेबली. मैंने आकर ना बहुत सोचा, 1 हफ्ते तक ना मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं की. मैंने सिर्फ सोचा कि रीज़न क्या था, मेरा एग्ज़ाम इतना बेकार क्यों गया. मैं आपको रीजंस बताता हूँ. जैसे ही मुझे पेपर मिला ना, पेपर पे फोकस करने की बजाय ना, मैं पास्ट में मैंने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे किया, वो सब चीज़ें सोचने लगा. क्वेश्चंस को पेशेंटली पढ़ने की जगह ना, मैं इस रेस में लग गया कि मैं जल्दी से इसको ख़त्म कैसे करूँ. बिना पढ़े, बिना समझे मैं अटेम्प्ट करने लग गया कि मुझे लगा कि यार पता नहीं है, मेरा तो होगा ही नहीं, ऐसा ही नहीं होगा, वैसा नहीं होगा. तो मैं ना कर्म करने की जगह ना फल की सोचने लग गया कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा. तो आप भगवद गीता में जो ये बात लिखी है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इट इज़ सो ट्रू, सो जेन्युइन. एक्चुअल में ना आपकी लाइफ में इफ यू आर डूइंग समथिंग, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, जस्ट एट प्रेजेंट फोकस ऑन व्हाट इज इन योर हैंड. जो आपके हाथ में है ना, आज उसके ऊपर फोकस करो. बस ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है. जो नहीं है उसको भूल जाओ, जो है उसको फोकस करो. उससे आप अपनी लाइफ में बेस्ट डिसीजंस लेते हो. कल आपका एग्जाम है, आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ाई स्कूल के अपने पूरे टर्म में पढ़ाई करी, अगले दिन पेपर है. अब आपके पैनिक करने से पेपर अच्छा तो होगा नहीं, क्योंकि आपके हाथ में है नहीं क्या क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं आएगा. आपका काम है कर्म करना. कर्म करने का मतलब पढ़ाई करना, रिवीजन करना. अब आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आप सोच रहे हो यार 10 चैप्टर है, मैं कैसे करूँ, होंगे ही नहीं. ये सोचने में आप एक भी चैप्टर को ढंग से नहीं कर पाए. पर अगर आप ये सोचो यार पेपर ठीक है, मुझे पढ़ के ना इस टॉपिक को समझना है, आई वॉन्ट टू लर्न इट, आई वॉन्ट टू नो इट, मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो आप 5 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ के चले गए ना, यू विल स्कोर बेटर देन अदर 80% ऑफ द चिल्ड्रन. अगर आप 5 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ के जाते हो तो, बट वो 5 चैप्टर ऐसे होने चाहिए कि आप जिंदगी भर उनको भूलोगे. हम क्या करते हैं ना, पेज पलटते हैं बस कि यार जल्दी से पढ़ लो, 10 के 10 चैप्टर खत्म करो और क्लोज करो. दैट इज वेयर वी लाई, यू नो, वी मेक द बिगेस्ट मिस्टेक. वट एवर यू डू इट प्रॉपरली, डू इट विथ पैशन, डू इट इन सच अ मैनर कि आपकी लाइफ में वो चीज़ आपको
याद रखो, आप उसको अच्छे से नॉलेज गेन करके उसको पेपर में दो। ये नहीं कि सिर्फ अगले दिन पेपर देना है इसलिए मैं इसको पढ़ाई करूँ। अब यूपीएससी में यू वोंट बिलीव 6 से लेकर 12 तक के पूरे सारा सिलेबस यूपीएससी पूछता है। आपको पता है ये यूपीएससी का सिलेबस पता है आपको? 6 to 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सिविक्स और आपका एनवायरनमेंट, दीज आर कल्चर, ये टॉपिक्स हैं। और हम लोग उसी टाइम को बहुत ही लाइटली लेते हैं। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम है। जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, आपकी कोई भी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आप लाइफ में उस नॉलेज को कहीं ना कहीं अच्छा यूज़ कर लोगे। और नॉलेज ऐसी चीज़ है ना, आप जब भी कहीं भी बैठे हो, किसी के साथ भी बैठे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, गेन दैट नॉलेज फ्रॉम दैट पर्सन, गेन दैट नॉलेज। मैं आपके साथ बैठा हूँ, आज मैं बैठा हूँ, कहीं कोई और बैठा है, मैं कुछ बात आपको बोलूँ, जो बात आपको सही लगे, जेन्युइन लगे, एब्जॉर्ब दैट नॉलेज, इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज, दैट नॉलेज विल नेवर गो वेस्ट। सेम गोज विद योर बुक्स। अच्छे से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि आपको जिंदगी में वो याद आए। इसलिए नहीं कि बस मुझे कल पेपर पास करना, नो, नेवर डू दिस मिस्टेक। यू विल वेरी इन योर लाइफ यू विल रिग्रेट दिस डिसीजन वेरी बैड। यार उस टाइम अच्छे से पढ़ लेता तो आज दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता। अब मैं आई एम अ वेरी स्लो लर्नर। आप में से कई लोग जो टॉपर्स होंगे ना, आप लोग ब्लेस्ड हो कि आप पढ़ते हैं 90%, 95%। The maximum I ever scored in my life was 70%. Because I am a very slow learner. मुझे एक चीज़ को याद करने में बहुत टाइम लगता है। आप मानोगे नहीं, मैंने यूपीएससी जब एग्ज़ाम दिया मेंस का, एक बुक को मैंने कम से कम 30 बार रिवाइज किया, जस्ट टू रिमेंबर इट प्रॉपरली, नॉट फॉरगेट एनीथिंग। 30 बार, शायद उससे ज़्यादा बार, मिनिमम है 30 बार, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती चीज़, तो मुझे और एफर्ट देना पड़ता है। तो आप सोचो कि आप कितने ब्लेस्ड हो, अगर आपको एक बार में पढ़ के चीज़ याद रहती है तो आप कितना कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। इफ आई कैन बी एन IAS, यू कैन बी एन IAS too. You can become anything that way, but you have to give the right effort. Be a very great message for all of us. Sir, how important is discipline and time management for success in life? Can you please give some tips to students? डिसिप्लिन तो मैंने आपको बताया कि भाई डेली आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए आपने जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। मैं आपको एक ना कहानी बताता हूँ। एक बार ना हमारे माइथोलॉजी की कहानी है ना, शिव जी के एक भक्त थे और एक ऐसे थे इंसान जो उनको ना पसंद नहीं करते थे। तो शिव जी के जो भक्त थे ना, वो डेली वहाँ जाते थे और फूल चढ़ाते थे। जो दूसरा इंसान था जो उनको पसंद नहीं करता था ना, वो डेली जाता था, उनके सामने ना पत्थर रख देते थे। एक दिन बहुत तगड़ा तूफान आया, तो शिव जी के जो बहुत बड़े भक्त थे ना, वो नहीं आए, लेकिन जो दूसरा इंसान जो पत्थर रखता था ना, वो आया। तो शिव जी खुश हो गए और उसके पास आए और बोल, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे मनचाहा वरदान देता हूँ। तो कहते हैं, प्रभु मैं तो जो आपका सच्चा भक्त है, जो आपको फूल देता है, आप उसके कहने पे नहीं आए, और मैं तो आपको पसंद नहीं करता हूँ और मैं पत्थर आके चढ़ाता हूँ, आपने तब भी मुझे दर्शन दे दिए, इसकी क्या वजह है? कहते हैं तेरा डिसिप्लिन है। वो बारिश देखकर अपने कर्तव्य को पूरा करने नहीं आया, लेकिन तू जो करता है, तूने ये नहीं देखा तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, कुछ भी आ रही है, लेकिन तू आया, चाहे तूने मुझे पत्थर अर्पण किया। दिस इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन। दिस इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन कि आपने कोई चीज़ कुछ मर्जी हो जाए, आपने वो करी है, कितना मर्जी बुरा टाइम हो, कुछ मर्जी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, यू हैव डन what you want to do in your life, that is discipline. आप अपने जर्नी में ना, लाइफ में अगर आप इसको अहमियत नहीं देते तो अल्टीमेटली यू विल रियलाइज कि आप अपने ना लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? टाइम इज़ लाइक मेरा, जब मैं टाइम मैनेज कैसे करता था कि मैं अपने टाइम के ना स्लॉट्स बनाता था। मैं पढ़ाई को और एन्जॉयमेंट को बैलेंस करता हूँ। लाइब्रेरी गए, 2 घंटे पढ़ाई करी, आधे घंटे बाहर वॉक करी, फिर वापस आया, 2 घंटे पढ़ाई करी, 1 घंटा लंच किया, फ्रेंड्स के साथ घूमा, थोड़ा बहुत बातें करी, फिर वापस आया, फिर 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर बाहर गया आधा घंटा, फिर ब्रेक ली, चाय पिया, घूमा फिरा, फिर वापस आया। टाइम कभी भी ऐसे मैनेज नहीं होगा जब आप अपने ऊपर इतना प्रेशर लेकर फोर्स करके कोई भी चीज़ करते हो। टाइम मैनेजमेंट तभी प्रॉपर होती है
जब आप हर चीज़ को बैलेंस करते हो। जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे ना, वो चीज़ ठीक नहीं। पढ़ाई, अपना सेल्फ टाइम, मी टाइम, फिटनेस टाइम, अपना जो है ना डेली रूटीन, उसको इस तरह बनाओ कि आपको कभी भी प्रेशर फील ना हो। कहना तो 12-12 घंटे बैठा रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, दैट इज़ द प्रॉब्लम। 12 घंटे पढ़ोगे, अगले दिन इतना एकदम ना फटीग हो जाएगा आपको कि यार कल इतना पढ़ लिया, आज छोड़ दो। दैट इज डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली इतना पढ़ो कि आप अच्छा अपना डेडिकेशन से पढ़ सकते हो, एंजॉयमेंट को बैलेंस करो ताकि वो डेली रूटीन बन सके। टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन को हैंड इन हैंड। मैं जब डेली अब जिम जाता हूँ, मैं अपना पूरा दिन का काम कंप्लीट करता हूँ, वापस आता हूँ, थोड़ा फैमिली के टाइम स्पेंड करता हूँ, 1-1.5 घंटा जिम जाता हूँ, वापस आके फिर फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ। मैं उसको एज अ बर्डन नहीं लेता, मैं उसको एज अ डेली रूटीन लेता हूँ, अपने टाइम को मैनेज करता हूँ, अपने डिसिप्लिन को मैनेज करता हूँ। दिस इज व्हाट स्टूडेंट शुड डू। Thank you, sir. This is really helpful for us. So like as we know, being an IAS officer comes with a very busy and a demanding schedule. Sir, in such responsibilities, how did you manage your health and fitness both as well? नहीं, वही दिस इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट ओनली, दिस इज अबाउट डिसिप्लिन ओनली। जैसे आप डेली का ना, आई नो कि दिस इज माई रूटीन, तो नेक्स्ट डे का मैं एक दिन पहले अपना रूटीन बना लेता हूँ कि ऑफिस में ये करना है, जो बाहर कहीं जाना है तो ऐसे करना है, शाम तक मैं फ्री हो जाऊँ, उसके बाद फैमिली को टाइम दूँ, खुद को टाइम दूँ, फिर हेल्थ को टाइम दूँ और अच्छे से अपने जो है ना बेटे के साथ, वाइफ, मदर, इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। अगर आप अपने लाइफ को बर्डन नहीं मानोगे ना और अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करोगे तो अल्टीमेटली यू विल मेक गुड डिसीजंस, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी एट पीस एंड यू विल डू गुड। तो दिस इज व्हाट मैटर्स। आपको हमेशा ना एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है अपनी लाइफ में। अगर आपका प्लान अच्छा होगा, यू विल श्योरली डू बेस्ट। तो मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, हैव अ डिसिप्लिन एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट रूटीन एवरी डे। एंड रूटीन इज नॉट बोरिंग। लोगों को क्या लगता है ना, रूटीन में चलना बहुत बोरिंग होता है। रूटीन इज नॉट बोरिंग, रूटीन इज द बेस्ट। रूटीन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ना कुछ अचीव नहीं कर पाते। रूटीन बनाओ कि यार ये मेरा सुबह उठने का ये टाइम है, ब्रेकफास्ट का ये टाइम है, लंच का ये टाइम है, शाम का ये टाइम है, डिनर का ये टाइम है, बीच में मुझे ये करना है, इस टाइम जिम करना है, इस टाइम पढ़ाई करनी है, इस टाइम मुझे काम करना है, इस टाइम मुझे फैमिली को देना है, इस टाइम मुझे वॉक पे जाना है, इस टाइम मुझे टीवी देखना है। बहुत फिक्स्ड रूटीन नहीं, बट सम रूटीन शुड बी, दैट इज वेरी गुड। So this would be a very inspirable guidance for us. Sir, what civic responsibilities do you think every student must follow to become a good citizen? बिकमिंग अ गुड सिटीजन, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। हम ना लाइफ में, आप स्पिरिचुअलिटी होती है ना कि हम बहुत भगवान में मानना और बहुत स्पिरिचुअली साउंड होना, मेरे हिसाब से एज अ गुड सिटीजन ना हमें वैल्यूज, मॉरल्स और एथिक्स को बहुत जो है अपनी लाइफ में एक हाई जो है वो देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वो कैसे? ऑलवेज डू व्हाट यू वांट अदर्स टू डू टू यू। जब आप ये चीज़ को फॉलो करोगे ना, तो मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट थिंग। व्हाट इज ह्यूमैनिटी? मैं किसी एक इंसान के साथ कैसा बिहेव कर रहा हूँ, दैट शोज माई अपब्रिंगिंग, माई कॉन्शियस। अब मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं उसके साथ तो गलत कर रहा हूँ, बट अगर कोई सेम चीज़ मेरे साथ करे तो मुझे कितना बुरा फील होगा। अगर ये चीज़ आप पहले सोचोगे ना, तो आप कभी किसी के साथ गलत नहीं। दिस शुड बी योर बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ योर लाइफ। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, आप किसी को बुरा भला कहते हो, किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हो, या किसी इंसान को आप परेशान करते हो या कुछ भी करते हो, ऑलवेज थिंक कि वाई आर यू डूइंग दिस। अगर वही चीज़ आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? हमें हमेशा डिसीजन लेते हुए ना इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आप मंदिर जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अल्टीमेटली जवाब आपको खुद को देना है।
आपके कर्म कैसे हैं, और कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। जो आप दूसरे के साथ करोगे ना, आपके साथ भी होगी। हमेशा ये सोच के करो कि यार जो आप करोगे वैसा ही आप भरोगे। सेम गोज विद एनवायरनमेंट, सेम गोज विद योर फैमिली। आप एक्सपेक्ट करो कि आपके बच्चे आपको अच्छे से ट्रीट करें, पर आप अपने पेरेंट्स को अच्छा ट्रीट नहीं करते हो, तो आपको लगता है कि आपके बच्चे करेंगे? नहीं करेंगे। यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल। आप चाहते हो कि आपका घर गंदा ना हो, पर आप किसी दूसरे के घर के आगे कचरा डाल दोगे, तो आपको लगता है कि आपका घर साफ रहेगा? नहीं रहेगा। दिस इज वॉट वी हैव टू थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। वट एवर यू डू, ऑलवेज थिंक कि अगर ये मेरे साथ होगा तो मुझे कैसा लगेगा। अगर बुरा लगेगा तो उसको मत करो। अगर बुरा लगेगा, मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले को बुरा फील हो, तो यार वो बोलो ही मत ना, क्योंकि आप नहीं सुन पाओगे उस चीज़ को। अगर आप खुद सुन सकते हो तो उसको बोलो, नहीं सुन सकते तो मत बोलो। जो आप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ होगा, आप एक्सेप्ट कर लोगे, तभी दूसरे के साथ करना, वरना मत करना। सेम आपका एनवायरनमेंट को लेकर, वैल्यूज़ को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, वाइफ को लेकर, बच्चों को लेकर, ऑलवेज ट्राई टू सेट एन एग्जाम्पल। इफ यू वांट अदर्स टू ट्रीट यू गुड, ऑलवेज ट्रीट देम द बेस्ट वे। दिस शुड बी योर गोल इन लाइफ। Thank you, sir. This is really helpful for us. Sir, as we know, you are very punctual towards your duty. Even every person knows that you are very punctual towards your duties. Like you conduct monthly inspection of EVMs and personally check all the arrangements of Sawan, Ashmi, etc. and recently flooded areas. Sir, how can a student contribute to social awareness and community welfare? As a student, you could always participate in community works with NGOs, with society, and आपको हमेशा ना, जैसे NSS आपका है, they work for service to the people. तो always I feel कि हर बच्चे को किसी ना किसी तरह ना सोशल वेलफेयर में जुड़ा होना चाहिए। NSS को ज्वाइन करो, आप अपने स्कूल के वॉलंटरी ग्रुप्स में जाओ, आपको श्रमदान करना चाहिए। कुछ कूड़ा कचरा बच्चे मिलकर उसको सफाई कर रहे हैं, कोई आपके यहाँ पे कोई डिज़ास्टर है, मतलब वेयर चिल्ड्रन कैन कंट्रीब्यूट, उधर ही यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड योर कंट्रीब्यूशन। पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी प्रोग्राम्स। ऐसे प्रोग्राम्स आप करो जिसमें आप लोगों को इन्वॉल्व करो, उनसे जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, वो लोगों तक पहुँचाओ। These things matter a lot. They matter a lot. So you should participate and students should participate. पढ़ाई के अलावा आपको सोसाइटी में, सोशल वर्क में बहुत पार्टिसिपेशन करना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सको, और आने वाले टाइम में वी कैन मेक आवर कंट्री अ गुड एंड अ बेटर प्लेस। This would be a very great advice for all of the students to contribute at social level. Sir, as we know that UPSC is considered one of the most toughest in the world. So how can you handle your stress and pressure at that time? You have to stay calm. You have to be very composed, and आपको ना किसी चीज़ का लोड नहीं लेना होता। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं पहले से ही पैनिक करने लग जाऊँ कि यार ये क्या होगा, कैसे होगा, मैंने UPSC को एक एग्ज़ाम की तरह ही लिया। मैंने उसको अपनी लाइफ नहीं बना लिया कि यार ये नहीं हुआ तो मैं तो पता नहीं मर ही जाऊँगा, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस किसी चीज़ को दे देते हो ना, तो वो प्रॉब्लम बन जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी काम, यू शुड बी वेरी कंपोज, और आप उसको इस तरह से लेके चलो कि यार आई ट्राई माई बेस्ट, आई गिव माई बेस्ट। नहीं भी हुआ, नहीं भी मिला, कोई प्रॉब्लम, बट आई ट्राई माई बेस्ट। दैट शुड बी योर माइंड सेट, कि हमें ना एक बहुत ही हावी नहीं कर देना उस चीज़ को। आपको एक एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह ही लेना, और आप उसके लिए एफर्ट करना। एफर्ट करने में आप अपना बेस्ट दो, जो होगा देखा जाएगा। आप अपना कर्म तो करो ना, फल की इच्छा क्यों करो? फल की इच्छा नहीं करोगे ना, अच्छे से करो। दिस इज व्हाट आई फील। Thank you, sir. Your words give us confidence. Sir, as the DC of Unna, you are the head citizen of our city. Sir, what message would you like to convey to the students of Unna regarding their responsibilities and their future? यार ऊना में मैं सभी बच्चों को आपके थ्रू एक मैसेज यही देना चाहूँगा कि एक ही लाइफ है,
there is only one life. This life is very beautiful. आपको ये लाइफ जो मिली है ना, do your best in this life. अपने टाइम को, अपनी लाइफ को ऐसी चीज़ों में वेस्ट मत करो जो इम्पोर्टेंट नहीं है. डिवोट योर टाइम टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर लव्ड वंस, टुवर्ड्स योर गोल एंड वर्क टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दैट गोल. आज के टाइम में मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों में थोड़ा सा जो है ना, बिकॉज ऑफ दिस IT रेवोल्यूशन, ये मोबाइल वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और इस सब की एडिक्शन बढ़ती जा रही है. दिस इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ कंपैरिजन एंड डिप्रेशन. तो आपको अपनी लाइफ में इन सब प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल, वर्क टुवर्ड्स दैट गोल, और ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. इसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे युवा में जो है ना, नशा और ड्रग्स और ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं. तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये नशा और ये सब चीज़ों से दूर रहो. आपकी जो लाइफ है ना, उस लाइफ को एक ब्लेसिंग मान के चलो और अपना बेस्ट दो. गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड वर्क टुवर्ड्स योर गोल. अब हम क्या है कि हमें हर चीज़ में बहुत जल्दी चाहिए, हमें हर चीज़ में शॉर्टकट्स चाहिए. शॉर्टकट्स आपको कहीं भी नहीं लेके जाएंगे. मैं ये बात मैं कई जगह बोलता हूँ कि जो हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ना, उसेन बोल्ट, एज अ रनर ही हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ 9.5 सेकेंड्स 100 मीटर्स. तो उनसे किसी ने पूछा कि यार ये रिकॉर्ड बनाने के लिए आपने कितने साल मेहनत करी? ही सेज मैंने 4 साल मेहनत करी. आज के टाइम में हम कुछ भी गोल अचीव करने के लिए ना 1-2 महीने में ही थक जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं. दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. अगर आपने कोई गोल अपनी लाइफ में बनाया है, उसको अचीव आपने करना है, तो अपना बेस्ट एफर्ट दो, वर्क टुवर्ड्स दैट गोल, डू योर बेस्ट टू अचीव दैट, और टाइम दो उसको, डिसिप्लिन से टाइम दो, कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो. इम्पेशेंट नहीं होना है कि यार ये तो मिल ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, और आप ना एकदम हाइपर हो जाओ, रेस्टलेस हो जाओ. दैट शुड नॉट बी योर गोल. आपको अगर अचीव करना है तो डेडिकेशन देना बहुत ज़रूरी है. तो मैं बस सबको यही कहूँगा कि नशे से दूर रहें, अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, अपने गोल के लिए मेहनत करें, पढ़ाई पे ध्यान दें. जो आपने अचीव करना है उसके लिए डेली मेहनत करें, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे. नहीं तो एक ये लाइफ है ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आज से ही अपने गोल की तरफ मेहनत करें. थैंक यू. This would be a very inspirable message for our students and help us to managing our responsibilities. Sir, how do you think students can balance modern education with global exposures? Today's modern education, when I say, it is more about analytical learning, more of understanding rather than rote learning. चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. और ग्लोबल एक्सपोजर के लिए जो ये IT रेवोल्यूशन है ना, इसको आप अगर अच्छे वे में यूज़ करो तो यू कैन लर्न अ लॉट. आज के टाइम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इंटरनेट को एज अ ब्लेसिंग लेना है, नॉट एज अ पेन. सोशल मीडिया की जगह यू शुड स्पेंड योर टाइम मोर ऑन लर्निंग व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द डे. Your modern education, along with that exposure that you get from the internet, you should combine them to use for your benefit and learn more. तो मैं बस इतना कहूँगा कि पढ़ाई से ज़्यादा आपको चीज़ों को समझने में टाइम लगाना चाहिए, rather than उसको रटने में. मेमोरी से रटना इज़ अ सेपरेट थिंग. उस चीज़ को समझना और नॉलेज को परमानेंट अपने माइंड में बनाना ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो बस मैं सबको यही कहूँगा कि उस एनालिटिकल थिंकिंग पे फोकस करो, इंटरनेट से प्रॉपर लर्निंग करो, और अपनी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए मेक अ प्लान, मेक अ स्ट्रैटेजी एंड वर्क ऑन इट. थैंक यू. As we know, our teachers and our parents plays a very vital role in our future as well as our responsibilities and our moral values. Sir, in your opinion, what role do parents and teachers play in shaping a student's career and a future? आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स और टीचर से बड़ा कोई रोल है. किसी का भी रोल इतना बड़ा नहीं होता.
पेरेंट्स तो आपको इस दुनिया में लेकर आते हैं, लेकिन जो टीचर है, टीचर को हमारी संस्कृति में भगवान का दर्जा दिया गया है, गुरु। तो उनसे ही आप सीखते हो, समझते हो, और वही आपकी लाइफ में जो है आपके बड़े डिसीजंस के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। तो पेरेंट्स को और टीचर्स को हमेशा ये होना चाहिए कि अपने जो बच्चा है उसको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए, और आपको उसको जो है बेस्ट एक डायरेक्शन देनी चाहिए। उसके ऊपर कोई चीज़ फोर्स नहीं करना चाहिए, और जो वो लाइफ में अचीव करना चाहता है उसमें सपोर्ट देना चाहिए। तो ऐसे करने से जो भी स्टूडेंट जब प्रिपेयर करेगा अपनी लाइफ में आगे गोल के लिए, दैट पर्सन विल बी मोर कॉन्फिडेंट, दैट पर्सन विल बी इंश्योरिंग कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, और दे गिव देयर बेस्ट। तो टू ब्रिंग आउट दैट बेस्ट, टीचर एंड पेरेंट्स हैव टू इंश्योर कि उनको वो प्लेटफॉर्म बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। उसके बिहेवियर पे उनका पूरा फोकस होना चाहिए कि कहीं वो ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, डिप्रेशन में तो नहीं है, परेशान तो नहीं है। तो दे शुड स्पेंड देयर टाइम विद द चिल्ड्रन, दे शुड गिव देयर बेस्ट एजुकेशन, देयर अपब्रिंगिंग, देयर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द चाइल्ड सो दैट दे लर्न दोज वैल्यूज़। और उनको ये सिखाना चाहिए कि जो लाइफ में फेलियर से, मिस्टेक से कुछ गलत नहीं होता है, you always learn from them and you grow. So both teachers and parents should have this role in the life of a child. Thank you so much, sir. Sir, what kind of India do you dream in next 25 years, and what role can students play for building that future? एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक आप क्वेश्चन पूछ रहे, मतलब आई एम नो बडी कि मैं कैसे एक बहुत बड़े फ्यूचर को एक प्रेडिक्ट करूं, बट आई ऑलवेज वांट दैट जो हमारा देश है, कंट्री, इट शुड बी हैप्पी, वी शुड बी सेटिस्फाइड, कंटेंट, वी शुड ग्रो। एंड मैं ऐसा चाहूँगा कि जो हमारे देश में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और इन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कोई लड़ाई झगड़े ना हो। सब लोग साइंटिफिकली थिंकिंग रखें, ओपन माइंडसेट रखें, पूरे देश की भलाई के लिए सब लोग मिलकर आगे बढ़ें। और जितने भी डेवलप्ड देश हैं उनसे आगे बढ़ने के लिए जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो हर इंसान में हो, बैकवर्ड थिंकिंग से बाहर निकलें। और मतलब चाहे तो जो हमारे जितने भी डिफरेंसेस हैं ना हमारे सोसाइटी में, चाहे वो आदमी औरत के बीच में है, अमीर गरीब में है, जाति वाले हैं, धर्म वाले हैं, ये सारे डिफरेंसेस ख़त्म हो, तभी हम एक ऐसा देश बना पाएंगे जो मिलकर बाकी डेवलप्ड देश को जो एक्चुअल में बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको हम पीछे छोड़ पाएँ या उनके साथ चल पाएँ। तो हमें आगे बढ़ने के लिए अपने उस बैकवर्ड माइंडसेट को छोड़ना है और वो साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना है, ताकि हम इनोवेशन के बारे में बात करें, डेवलपमेंट के बारे में बात करें, साइंस के बारे में बात करें, लॉजिक के बारे में बात करें, और ऐसा कुछ अपनी दुनिया को कंट्रीब्यूशन दें जिससे कि हमारा जो इंडिया है, हमारा देश है, वो एक डेवलप, एक प्रोग्रेसिव, एक सुपर पावर बन सके। बस मैं इतना ही चाहूँगा। थैंक यू। So with your kind permission, now I would like to open a poll for our students to ask some question from you. Good afternoon, sir. Sir, please tell me how can I become a DC like you? जो मैंने अभी आपको पूरा जर्नल बताया, मतलब मैंने अपना ओपिनियन बताया आपको कि मैं कैसे बना, बट सिंस मैं बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है। उसके लिए बस आपके माइंड में, आपकी लाइफ में वो गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। यू शुड वर्क टुवर्ड्स दैट गोल एंड मेक श्योर कि आपने जो गोल बनाया है उसके अचीवमेंट के लिए आप डेली डेडिकेशन के साथ प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो, और उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करो। नशे से दूर रहो, पेरेंट्स और टीचर्स को रिस्पेक्ट दो, उनसे सीखो, समझो, और अपने गोल के लिए दिन रात मेहनत करो। बस ऐसे बन सकते। Good afternoon, sir. Please tell which was your favorite subject? My favorite subject, my favorite subject is like I like economics,
geography and philosophy. I really enjoy studying them. Okay, thank you, sir. Thank you. Good afternoon, sir. Sir, please share your happiest moment of school life. My happiest moment of school life, मैंने सोचा ही नहीं कभी, मतलब यार बहुत सारे मोमेंट्स हैं, मतलब हैप्पीएस्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरा एवरेज आई ऑलवेज गॉट 70%, बट 7th में एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब इन 1 टर्म आई गॉट मोर देन 80%, और जो मेरे टीचर थे उन्होंने मेरे मदर को और फादर को बुला के बहुत अप्रिशिएट किया कि पहली टर्म में ये 60 भी नहीं था, बट सेकेंड टर्म में इसने सीधा 80+ कर दिया. तो दैट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, एंड दैट वॉज जस्ट बिकॉज कि जो मेरे टीचर थे ना, वो बहुत एफर्ट लेते थे, पेन लेते थे मुझे पढ़ाने और समझाने में. तो आई रियली वॉज एबल टू डू माई बेस्ट बिकॉज ऑफ हर गाइडेंस. तो आज भी आई रिमेंबर हर, जो मेरे मैम थे, जसविंदर मैम थे, और शी वॉज वेरी वेरी काइंड, हेल्पफुल, ऑलवेज स्माइलिंग, और बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था मुझे. तो आई रियली रिमेंबर हर एज वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स. दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट. Okay, sir. Good afternoon, sir. How do you feel when you meet students? आई फील वेरी गुड. आई ऑलवेज ट्राई कि जब भी मुझे किसी भी स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी बुलाया जाए तो मैं ज़रूर जाऊँ, ताकि आप सबसे बात करने का मुझे मौका मिले, और आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है. आप लोग हमारे देश का भविष्य है, और आगे जाके आपने ही देश को चलाना है. तो आपसे मिलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि आप जो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छे हाथों में है. आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और अपनी लाइफ में अच्छा करें. बस मैं Thank you, sir. थैंक यू. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. Share your experience with us today. द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. जो दोनों होस्ट थे बहुत अच्छे थे. आपका एडमिनिस्ट्रेशन टीम बहुत अच्छा है. आप सब लोग ने बहुत, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ और आप पेशेंटली सुन रहे हो, तो वो भी बहुत अच्छा है. आपके टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको पूरा सब मैनेज करने के लिए. ग्रेट, मतलब स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है. इट इज़ वन ऑफ द लाइक फाइनेस्ट स्कूल्स दैट आई हैव विजिटेड. आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहें, अच्छा करें, और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती रहे यहाँ से. मैं बस आप सबसे यही लाइक अपने व्यूज़ यही शेयर करूँगा कि यू आर डूइंग ग्रेट, और ऑल द बेस्ट फॉर माई साइड. Thank you, sir. On behalf of all the students, thank you so much for giving your valuable time and your guidance and share your stories with us. It's a very big message to our students. Thank you so much. It was my pleasure. Thank you everyone. Thank you. I'll try my best. Thank you.